गुड आफ्टरनून बेटा। हमने आपको कल के लेक्चर में, जिसको हमने आज पोस्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जनरली उसमें मैक्सिमम चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी कुछ पार्ट वहाँ पे बचा है उसको हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जनरली यहाँ पे 18 मार्क्स से अप्रॉक्सीमेट 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कुल मिला के 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से बनते हैं। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? अभी तक हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ये स्टडी किया कि जनरली दैट इनहेरिटेंस इज ए काइंड ऑफ क्रोमोसोमल लेवल basis of inheritance. But in the next chapter, in genetics, molecular basis of inheritance means here study occur about the DNA. We discuss about the DNA. In class 11th we discussed the DNA in chapter of biomolecules. Here that DNA and RNA are used for the discussion of the molecular basis of inheritance. So which type of inheritance are discussed by the here? They are basis of DNA means जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वो they are around the DNA, RNA, DNA and RNA, चाहे वह इनहेरिटेंस हो या डिटर्मिनेशन है, या हम उसका जो है लाइकोग्राम मॉडल पढ़ेंगे या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डुप्लीकेशन, many satellite, microsatellite. What is the lot of the DNA or different type of DNA, and what is the utilization in our life? Just like the e-card, Aadhaar card, microchip, microarray, molecular diagnosis. A lot of the tools are developed by this DNA. So we start the discuss of the elementary knowledge of the molecular basis of inheritance. First, we start about the nucleic acid. Nucleic acid generally first time discovered by the Frederick Meister, is a physician. He isolated some pus cell from a patient body and isolate and study under the microscope, where he observed some nuclein-like material. Yeah, he observed some strain-like material known as the nuclein. The term nuclein is given by the Frederick Meister, Meischer. After discovery of Frederick Meister, nucleic acid term is given by the Thiaman. So Thiaman first time used the term of nucleic acid, and Frederick Meister used the term of nucleic acid. First time he isolate the nucleic acid from a human pus cell in which the DNA and RNA are found. तो डिफरेंट टर्म है। तो वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द DNA, हाउ टू जस्टिफाई द DNA द जेनेटिक मटेरियल और DNA, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द DNA. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन न्यूक्लिक एसिड वी डिस्कस अबाउट द DNA. तो DNA जनरली इज कंपोज्ड ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस में बेस कंटेन द टू टाइप ऑफ बेस. One is the purine, another is the pyrimidine. One is the purine, another is the pyrimidine. It is the two type of nitrogenous base. In purine, adenine, guanine, and in pyrimidine, cytosine and thymine. Okay. Further we study about the what is the pairing of adenine, guanine, cytosine and thymine by the help of the Erwin Chargaff's rule. We study in class 11. It is the molecular structure of the adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. It is the molecular structure of the adenine. तो ये जो DNA है उसमें कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं उसकी स्टडी हम जो है करेंगे यहाँ पर. और इसमें DNA में हमने पढ़ा कि दो नाइट्रोजनस बेस हैं, प्यूरिन कंपोनेंट्स हैं, pyrimidine कंपोनेंट्स हैं. प्यूरिन में हमने पढ़ा कि एडेनिन एंड ग्वानिन पाए जाते हैं. इसके बाद बेटा इसमें
वी स्टडी अबाउट द शुगर. यहाँ पे जो शुगर है दे आर डीऑक्सी राइबोज शुगर. ठीक है. देयर स्ट्रक्चर आर the deoxyribose sugar, CH2OH, H, HOH, H, CH2OH and H. This is the carbon number 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Carbon number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. When a phosphate attaches the carbon terminal 3 known as the C3, yeah, known as the 3 direction. When phosphate attached at the carbon number 5 terminal known as the 5. So when we discuss about the direction of DNA 5 to 3 direction, it show that the base of DNA attached to the sugar at the carbon 5 terminal and this DNA helix are attached to the carbon 3 terminal. So it is a kind of sugar in which are found inside the DNA. One factor is the orthophosphoric acid are found in DNA. Nucleoside is formed by the joining of base. Nucleoside formed by the base plus sugar. ओके. इसमें अगर एडेनिन हम अटैच करते हैं, एडेनिन प्लस sugar, so that is called adenoside. When here attachment of the guanine plus sugar, it is a known guanoside, and when thymine are attached plus sugar, it is known thymoside. Okay. Just like the cytosine are attached to the sugar known as the cytosine. Okay. One is the nucleotide. Nucleotide means base plus sugar plus phosphate. Orthophosphoric acid are attached. Just like the base, adenine plus sugar plus phosphate is known adenotide. So just like the guanine are attached to the guanotide, just like the attach of cytosine known as the cytoside, attachment of the thymine, thymotide. So it is a kind of a nucleotide. So generally DNA is a kind of polymer of nucleotide, where nucleotide attached to each other by the like special type of bond known as the phosphodiester bond. So nucleotide में phosphodiester bond and the hydrogen bond are found, which are cross linkage into the DNA helix. So generally it is the elementary knowledge of DNA. इसके बाद बेटा स्ट्रक्चर ऑफ DNA में फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर आर स्टडी बाय द फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर इज स्टडी बाय रोजलिन and Franklin. Okay. And appropriate structure is studied by the Watson and Crick. Double helix model.
In Franklin, Wilkins, Rosalind, and Franklin, their model are not justify the structure of the DNA, but A.G. Watson and E.R.P.S.C. Crick first time support the DNA as like the ladder, DNA as like the double helix structure, in which one helix are run 5 prime to 3 prime direction. Another helix are run their anti-direction 3 prime to 5 prime direction. It means this is the DNA as a ladder like structure. So here attachment of A to T, G to C, or T to A, or C to G, further A to T. So just like on the basis of type of DNA, we attach to the strand. So according to Watson, DNA helix complete one turn carry the 34 angstrom distance. Means one helix carry complete the distance of 34 angstrom, and the distance between the helix is always 20 angstrom. Means this helix distance always carry the 20 angstrom, and the pitch axis is contain 3.4 angstrom, and the distance between the two strands is 3.4 angstrom in diameter. So it is the structure of DNA which discovered by the Watson and Crick. According to this model, DNA are double helix-like structure in which the both helix are run anti-parallel in direction. तो उसमें क्या होता है कि दोनों हेलिक्स दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करती है. तो इट इज द वाटसन एंड क्रिक मॉडल. प्लीज सी इट. ओके. और इसके बाद बेटा अगर आप टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ हेलिक्स पैटर्न डीएनए आर ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, so on ZDNA, and the major difference is found between the bDNA and ZDNA. Major difference occur in between the B and ZDNA. In case of bDNA, coiling occur from left hand side, and in ZDNA coiling start from right hand side. So on the basis of coiling pattern, the DNA are two type. bDNA contain the 10 base pair per term. It is the 5. It is the 5. And ZDNA approximate 10 to 12 base pair per term. तो यहाँ पे 6 strand, यहाँ पे भी 6 strand आप यूज करेंगे. But in case of the bDNA, we utilize only the 10 base pair per term. अब यहाँ पे जरा देखिए, एक मॉडल है RL मॉडल ऑफ DNA. It is given by V. Shashi Sekharan, scientist of Indian Institute of Sciences, Bangalore. According to him, the DNA are two type B and Z. One is the right hand side and there is the left hand side. But according to the Shashi Sekharan, one DNA contain the both helix. One is the left and the other right side. So why we classify the DNA are two type, ZDNA, bDNA? So approximate DNA are generally one type RL model या RL DNA, in which same DNA contain the two helix, according to the V. Shashi Sekharan. One important thing, discussed by the C paradox value.
सी पैराडॉक्स वैल्यू का मतलब है कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ डीएनए आर फाउंड इनसाइड द सेल, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ डीएनए आर फाउंड इनसाइड द सेल। तो जनरली 3.4 into 10 raised power 9 base pair in case of mammalian single helix, double helix 6.4 into 10 raised power 9 बेस पेयर पर टन आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा बैक्टीरिया में आपको मिलेगा, अदर सेल्स में आपको मिलेगा, मैमेलियन खासकर सैलामेंडर वो साइड कटेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डीएनए। तो इट इज द पैरामीटर और रेंज ऑफ द सी पैराडॉक्स वैल्यू विच शो द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए आर फॉर्म। इसके बाद बेटा इसमें है इरविन चारागाप्स रूल। इरविन चारागाप्स रूल, one time we study in class 11. According to Irvin Charagaps, in DNA helix A join to T and G bind to C by hydrogen bond and backbone contain phosphodiester bond। ओके, सेकंड है कि इन डीएनए हेलिक्स amount of A plus G is equal to amount of C plus T। okay, that is A equal to G, C equal to C, sorry T equal to C। ओके, थर्ड है इन डीएनए हेलिक्स A plus T plus G plus C is total amount is 100%, then DNA are double strand DNA, otherwise less than 100%, then DNA are single strand, that DNA is not single strand DNA, जिसमें इक्वल अमाउंट्स आपको 100 से कम हो जाएगा, वो डीएनए अप्रॉक्सीमेट इससे कम आपको मिलेगा। तो ये इसका पैरामीटर है, ये इसका रेंज है, ठीक है। फोर्थ है इन डीएनए स्ट्रैंड G plus C is maximum to A plus T, then that DNA are thermostable। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर वह G प्लस सी का अमाउंट्स A प्लस टी के अमाउंट से कम हो जाता है, लिस्ट हो जाता है, तो वो डीएनए क्या होता है कि लीस्ट स्टेबल हो जाता है, उसकी थर्मो कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए ये पॉइंट्स इसमें डिस्कस हो जाता है। ठीक है बेटा, इस पे कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराए।
जैसे है इन डीएनए हेलिक्स G contain 20%, then calculate the amount of A plus T. ओके, दिया है G इक्वल टू 20%, तो डेटा में C इक्वल टू ऑल्सो 20%. ओके, क्वेश्चन है A प्लस T प्लस G प्लस C इक्वल टू 100. तो A प्लस T प्लस 20 प्लस 20 इक्वल टू 100. तो A प्लस T इक्वल टू 100 माइनस 40. तो A प्लस T का अमाउंट आपको मिल गया 60. ओके, अगर वो सेपरेटली आपको पूछ रहा है कि A और T का अमाउंट क्या है या एडेनिन का है, तो A इक्वल टू T. तो A प्लस A इक्वल टू 60 और 2A इक्वल टू 60 और A इक्वल टू 60 बाई 2 इक्वल टू. ये क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप नोट करेंगे. देखिएगा, इन डीएनए थायमीन contain 273 nucleotides, then calculate the amount of G plus C. दूसरा है इन डीएनए हेलिक्स GR 100%, then calculate amount of A plus T and nature of DNA. ओके, ये क्वेश्चन करेंगे. नोट करें बेटा. चले, इसके बाद बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. देखिए, जनरली डीएनए की जो पैकेजिंग है, इन प्रोकैरियोट डीएनए डज नॉट undergo package. They are discrete inside the cytoplasm, that is called genophora DNA. So generally in case of bacterial cell or E. coli, DNA are without histone protein. Okay,
The packaging of DNA or structure of DNA is discussed on the basis of nucleosome model. This model is given by P. Audet. Okay. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि when we study the structure of chromosome, where we found that कि at the chromosomer some beaded stem-like structure are present. At chromosomes some beaded stem-like structure are present known gene. That phenomena is known gene. But after discovery of gene, some work are reported that what is the chemistry of gene. तो ये पता चला कि gene is a chemically or DNA. तो इट इज ए काइंड ऑफ डीएनए डाइमर. इसको जरा आप देख लें डाइमर को. तो डाइमर में जो ये थ्रेड है ये जिस फैशन में जाता है, और किसी भी डीएनए का जो ये डाइमर है, जो ये सोलेनॉइड्स हैं, वो इस क्रोमोसोम पे इस फैशन में अरेंज होते हैं बेटा. दैट इज कॉल्ड डीएनए डाइमर. और इस डीएनए को लिंक करने वाले को बोलते हैं डीएनए लिंकर. एंड डीएनए लिंकर इज कंपोज ऑफ H1 प्रोटीन. क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक. द यूकैरियोटिक डीएनए आर डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर. दे कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ पैकेजिंग by which they are not destroyed in nucleus or in chemical nature. So generally DNA contains the some protein in which the H1 and histone acidic, histone basic, H3 and H4 type of histone protein are participate. H2A, H2B, H1 is a kind of DNA linker protein. H2A means histone acidic and histone basic. It is the arginine and lysine rich. But H3 and H4 में minimum amounts में lysine होता है. They are arginine contain the maximum amount. So it is a kind of nucleosome model where the H1, H2A, H2B, H3 and H4. अभी देखते हैं कि इसका पैकेजिंग कैसे हो रही है. तो दिस इज द डीएनए सोलेनॉइड. This diameter is 10 nanometer and this diameter is 30 nanometer. And here the H2A core protein. This is the H2B core protein. H3 also form their core, just like the H2A. This core form H3, H2B and H4. ओके बेटा. तो इसमें आपको 4 प्रोटीनें ऊपर है. H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4. ये मिलाकर एक बनाती हैं ऑक्टामेरिक हिस्टोन प्रोटीन. It means DNA is covered with octameric histone protein. You will draw a diagram. तो octameric histone protein are found at the core of DNA. तो पूरे DNA को ये लपेटे रहते हैं, कवर करते हैं. आप देखिए इसमें एक एनसीईआरटी में आपके डायग्राम है इसी पैकेजिंग को लेकर. they form this type of block. इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं दिस टाइप ऑफ फैशन.
दिस इज द H1 protein, H2A, H2B, H3 and H4. Okay. Sometime this type of diagram also are mentioned. This like, ठीक है। तो ये डीएनए का सोलेनॉइड्स है, और जो इसको कनेक्ट कर रहा है ये है डीएनए लिंकर RH1। ओके, तो देखिए एक मिनट, तो ये आपको एक प्लेन पे दिख रहे हैं, इसका प्लेन एक आपको पीछे है, क्योंकि आपटा मेरिक स्टोन प्रोटीन है, तो ये चीज़ एक और आपको मिल सकती है पीछे से, और एक या तो डायग्राम ऐसे बना सकते हैं या डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें ये कंफर्म हो गया कि किसी भी डीएनए की पैकेजिंग किससे होती है, कंफर्म है कि डीएनए आर पैकेज बाय हिस्टोन प्रोटीन इन विच द H2A, H2B, H3, H4 are found as the core protein, which are found the upper core and lower core, means they form a octameric histone protein by which a solenoid DNA are packed. But in case of prokaryotic DNA are not packed, तो जनरली वहाँ पे क्या होता है कि डीएनए जनरली साइटोप्लाज्म में डिस्क्रीट होते हैं। आप ये क्वेश्चन आता है जो पैकेजिंग को लेकर, विच डीएनए आर पैकेज इनसाइड द सोलिनॉइड्स या इनसाइड द डाइमर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू 0.34 into 10⁻⁹ into distance between two consecutive base pair। ओके, इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। फार्मूला मेंशन करें कि लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू 0.34 into 10⁻⁹। तो जो ये 0.34 है, ये हमने इस यूनिट को मीटर में लिया है, ये लेंथ ऑफ डीएनए है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने लेंथ, ये मान लिया हमने एक पैरामीटर है, लेकिन आप इसको अगर यूकैरियोट्स में आते हैं या किसी मैमेलियन सेल में देखें, लेंथ ऑफ डीएनए इन मैमेलियन सेल, फार्मूला हो जाएगा 6.6 इंटू, ये आपको मेमेलियन सेल का जो डेटा है आपको यूजली बेटा ह्यूमन में मैंने बताया कि जो सिंगल हेलिक्स 10⁻⁹ है, ठीक है। अगर ये चला जाएगा डबल हेलिक्स तो ये 6.4 या 6.6 इंटू 10⁻⁹, ये टोटल सी पैराडॉक्स वैल्यू है। ओके, तो सी पैराडॉक्स वैल्यू क्या होती है, मेंशन कराती है कि क्या आप पैरामीटर ऑफ डीएनए आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो पैरामीटर डिस्कस करेंगे, ये सिंगल हेलिक्स है। ह्यूमन बॉडी में जो डीएनए है, ह्यूमन बॉडी का डीएनए का सी पैराडॉक्स वैल्यू है बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का है। अगर डबल स्ट्रैंड आप लेंगे, डीएस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो आप 6.6 लेंगे, इनटू आप देख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव बेस, ठीक है, पेयर ले लीजिए।
ये आप लेंथ ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। एनसीईआरटी में आप जाएंगे, क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए जरा। करें कि इन्हें सेल 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर सेल 3.4 मीटर डिस्टेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव बेस, ठीक है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ डीएनए, सीधा सीधा हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁹ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ डीएनए आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, जो ये डेटा हमने दिया है, अगर सवाल में है तो ये टोटल बेस पेयर होगा, ठीक है। जो ये डेटा हम दे रहे हैं ये बेस पेयर पर टर्न है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो आप बता रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट मिला जुला कि ये कुल 2.2 मीटर अप्रॉक्सीमेट आपको ये डाटा मिलेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप करेंगे, जैसे करा कि मैंने आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ करा कि इन्हें यूकैरियोटिक सेल ऑफ ह्यूमन 3.9 into 10⁻⁹ या 0.39 to 9 मीटर पर बेस पेयर आर प्रेजेंट। कैलकुलेट लेंथ ऑफ डीएनए, इसको लगाएंगे तो इसके द्वारा आप लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करेंगे और आपको लेंथ ऑफ डीएनए इसके द्वारा आपको मालूम हो जाएगी। तो हमने इसमें आपको बताया कि हाउ टू डीएनए आर पैकेज, तो पता चला कि डीएनए H2A, H2B, H3, H4 के द्वारा पैकिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टामेरिक हिस्टोन प्रोटीन। इनमें द आर्जिनिन, लाइसिन, ये रिच अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि डीएनए को पैक करती हैं, बट इनके साथ प्रोकैरियोटिक डीएनए आर नॉट पैक आउट। हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए किसी भी सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में, तो आप क्योंकि मैंने कहा प्रोकैरियोट में होती नहीं है, इसलिए हमेशा आपको लेंथ ऑफ डीएनए किसी भी यूकैरियोटिक सेल में कैलकुलेट करने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे इसको आप करते जाएंगे। इसके बाद बेटा डीएनए में फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे आगे। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि हाउ टू जस्टिफाई डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। के समय
कुछ लोगों की ओपिनियन थी कि आरएनए आर फर्स्ट इवॉल्व जेनेटिक मटेरियल वाया डीएनए आर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो इससे 5 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन 100% आपको मिलते हैं। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल में एक एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, कॉल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ is scientist which discover the transformation in bacteria. First of all, we discuss about the what is the strain taken by the Griffith during this experiment. He select the Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae bacteria contain the two strain, S strain and R strain. How to distinguish between the strain? S strain are virulent, are pathogenic. क्यों पैथोजेनिक था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मूथ सेल वॉल। R is a non-virulent, due to lack of स्मूथ सेल वॉल। अभी क्वेश्चन उठता कि जो स्मूथ सेल वॉल बनाती है इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन्स तय होंगे, या स्पेसिफिक टाइप के डीएनए हैं या जीन हैं जो किसी भी बैक्टीरिया में है तो उसके ऊपर एक स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करती है, बाय विच द बैक्टीरिया आर द रेजिस्टेंट इन नेचर। तो जो उनकी रजिस्टिविटी है, जो उनका रेजिस्टेंट नेचर है, वो डिफाइन करता है उनके डीएनए के रोल को, कि विच बैक्टीरिया आर विच स्ट्रेन कंटेन द डीएनए आर जीन which synthesize the slime layer or cell ये resistant cell wall over the slime layer, then they are resistant in response of antibiotic, but those bacteria with the slime layer are not for that bacteria are not resistant in nature. तो जनरली उन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की स्ट्रेन्स लिए और उस पर उसने माइस सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया देखिएगा बेटा, उसने लिया एस स्ट्रेन प्लस आर, मैंने स्मूथ और रफ स्टेन बैक्टीरिया को उसने टेस्ट ट्यूब में लिया। इसके बाद उसने इंजेक्ट इनटू माइस सेल। इसका मतलब हुआ कि अगर उस बैक्टीरिया में जिसमें स्मूथ बैक्टीरिया रहा होगा, जिसमें वो डीएनए था, उसने अपने को मल्टीप्लाई किया और इसमें निमोनिया की डिजीज काज की होगी, जिसके कारण ये माइस क्या हुआ, डाई कर गया। लेकिन एक चीज़ कंफर्म नहीं होती है कि इसमें इन्फेक्शन स्मूथ ने बैक्टीरिया ने किया या रफ ने किया। इसके लिए उसने क्या किया, R strain are heat killed। उसने क्या किया, इंजेक्ट इनटू माइस। फिर उसने कुछ दिन बाद देखा कि जिस माइस में उसने डाला था, माइस आर नॉट डाइज, क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट फील्ड कर दिया, इसके बाद इंजेक्ट किया तब भी देखा कि वो डाई नहीं किया।
तीसरा यह कि अगर उसने आर को कूल डाउन करके फिर उसने इंजेक्ट किया, फिर रिजल्ट उसको वही मिलता है कि माइस आर नॉट नाइस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और उसने आर स्ट्रेन के साथ कल्चर प्रिपेयर किया और फिर उसने इंजेक्ट इनटू माइस और उसने रिजल्ट ये देखा माइस आर नाइस। This experiment explain yes strain contain that DNA or gene which synthesize a resistant layer over bacterial cell wall which cause the resistant nature of bacteria which form the slime layer of bacteria। तो एक पॉलीसेक्राइड की लेयर स्लाइम लेयर पे बनती है जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट करता है। तो अगर हमें पता है कि यस स्ट्रेन में था तो हमने एस को क्या किया, हीट किल कर दिया और इसके बाद आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ कल्चर किया। तो जब इसमें बैक्टीरिया को आपने आर स्ट्रेन को यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हमने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये बैक्टीरिया इनएक्टिवेट होकर अपने डीएनए को यस ने अपने डीएनए को ट्रांसफर कर दिया आर स्ट्रेन में। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन one bacterial cell transfer their genetic material to another bacterial cell and that DNA are undergo duplication and formation of that bacterial cell। that bacterial स्पोर्स बनेंगे। जैसे यस ने अपने डीएनए को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो अब आर का कल्चर नहीं होगा, आर के बैक्टीरिया नहीं बनेंगे, अब एस के बैक्टीरिया बनेंगे। मतलब ये हुआ कि ये यस स्ट्रेन न्यूट्रलाइज हो गया तो इसका डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा चला आया आर स्ट्रेन में और जब यह आर स्ट्रेन में आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि आर स्ट्रेन में वह डीएनए उसको मिल गया और ये डीएनए क्या हुआ कि जो नया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आया उसके ऊपर वह लेयर बनाना शुरू कर दिया जिसके कारण ये बैक्टीरिया जो आर था वह जो नॉन वारुलेंट था दे बिकम वारुलेंट इन नेचर। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया contain DNA and R does not contain the DNA। Then during sexual reproduction DNA transfer the genetic material into the R strain bacteria and that bacteria transform into the infective bacterial cell। ओके, तो डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये कंक्लूजन जो ग्रिफिथ ने की फाइंडिंग अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने पाया, उसने ये पाया कि जो बैक्टीरिया में डीएनए था वो एक पॉलीसेकेराइड कोट बनाता है जिसके कारण यस स्ट्रेन बैक्टीरिया पैथोजेनिक था, वारुलेंट था, बट आर बैक्टीरिया आर नॉट पैथोजेनिक इन नेचर। तो ये एक्सपेरिमेंट ये जस्टिफाई कहीं करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अगर आर में आरएनए था तो वह कल अपने को मल्टीप्लाई करना चाहिए और वह फिर वहाँ पे इन्फेक्शन करता। तो ये एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ऑब्जेक्शंस थे कि ठीक है डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं था तो उसमें बैक्टीरिया में कुछ प्रोटीन सेल्स रही होंगी, कुछ जो पॉलीसेकेराइड है जो उसमें ग्लूकोज है वो हो सकता है इन्फेक्शन किया हो। तो जो पॉलीसेकेराइड या ग्लूकोज
भी इन्फेक्शन का चांस कर सकता है, या प्रोटीन कर सकती है, या उसमें कुछ एंजाइम रहे होंगे या लिपिड रही होगी वो इन्फेक्शन की हो। तो ये लॉट ऑफ क्वेश्चन अराइज इन फ्रंट ऑफ द क्रिकेट, बट सम वर्कर्स also explain the controversy of the DNA genetic material and strongly justify that the DNA is genetic material. Molecular basis of latents is the very tough chapter, क्योंकि जैसे जैसे हम आप आगे लेके जाएंगे ये आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, इसलिए आप इसको रेगुलर अपनी बुक से NCERT से आप जरूर पढ़ेंगे। और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ latents इज टच टू द बायोटेक्नोलॉजी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आगे हम आपको इसके और एविडेंस बताएंगे कि 2 एविडेंस और कौन से हैं जो जेनेटिक मटेरियल को जस्टिफाई करते हैं। तो बीच में जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं उसको आप सॉल्व करिएगा, नहीं आता देखेंगे। जो भी हमने आपको MCQ की सीरीज़ दी हैं, MCQ सीरीज़ के आंसर आप व्हाट्सएप पे करें, उसको देखें, नहीं आता उसको पूछें, बैठकर इनएक्टिवेट सेल में रहना, और यूँ कर लीजिए अपने को इनएक्टिव कर लेना, या आपके पास समय है उसको आप डिस्ट्रॉय ना करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होगा। जब भी स्कूल खोलेंगे आपके 2-3 महीने क्लास हो जाएंगे, इसलिए आप जितनी रिकवरी करके चलेंगे वो आपके लिए फ़ायदा होगा। ओके।